Let's start with general microbiology first. I have to ask, general microbiology हो गया आपका? आपने पढ़ लिया? Sterilization, disinfectants, these all things. Complete bacteriology में ही आता है. Okay. Let's start with our general microbiology. General microbiology, or I would say general bacteriology. We will discuss both of them together. These two segments, general bacteriology and general microbiology, as same. Okay. So in general microbiology, our main aim in microbiology is to identify some kind of organism, whichever organism it can be. It can be virus, it can be fungus, it can be. So our main aim is to identification and followed by demonstration. क्योंकि हमने तो ढूंढ लिया, लेकिन हम किसी को प्रूव ही नहीं कर पाए कि हमने ढूंढ लिया. So we have to cover these two aspects. The second thing which we need to cover is antibody susceptibility testing. These two topics which are very important in general microbiology, we need to know. Identification and demonstration. We have covered it in the identification. How do we identify? I told you the sequence. We can identify by using microscopic examination. We can use culture and then culture identification. We can use molecular methods or we can use immunological methods. This is not the sequence, but these are the four methods we use to identify an organism. All these three, microscopy, molecular, and culture, they identify the antigen part, that means organism. Immunological method mostly can discover antigen and antibody both. This is the rule. ये हमें पता है. All these tests are direct test. This would be, if you detect antibody, this would be indirect test. यहाँ तक हमें पता है. And indirect test आप कब कर सकते हो? Generally after 2 weeks. After 2 weeks, sorry, after first week, or I can say in second week you can apply these tests. Let me give you an example. Have you heard of Basu? इन साल्मोनेला टाइफाइड. टाइफाइड के डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल्स की जो लैब डायग्नोसिस होती है उसकी सीक्वेंस बासो होती है. इन फर्स्ट वीक यू यूज ब्लड एज ए सैंपल. ओके. सेकंड वीक यू गो एग्लूटिनेशन टेस्ट. व्हाट इज विडाल टेस्ट? विडाल टेस्ट में वी फाइंड एंटीबॉडीज एंड इट इज एन इनडायरेक्ट टाइप ऑफ टेस्ट. ओके. So antibody detection is always in second week. Direct test can be done in first week of illness, first week of exposure. And one thing we know, PCR we can do any week. It is acceptable. In generally हमने वायरस में कुछ एक्सेप्शंस कवर करी कि कब पीसीआर की 18 मंथ्स और बेबी वाले सिनेरियो, वो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज है सबके. ओके. नाउ आवर मेन फीचर हियर लेफ्ट इज एएसटी, दैट इज एंटीबायोटिक antibody susceptibility testing. So to check for the susceptibility of an antibody, we have to first culture the organism, and then we will put the antibody and check for the response. Or either we can have molecular studies. Okay. Culture study will give us phenotypic results. It can tell us phenotypic sensitivity or phenotypic resistance to some kind of antibody. इस पे ये एंटीबॉडी काम करेगी कि नहीं करेगी. Molecular methods will cover genotypic classification of antibodies कि किसी के पास रेजिस्टेंस जीन है, प्लाज्मिड्स हैं, these kind of scenarios. उनके पास कोई ऐसी जीन है which make them some kind of resistance or some kind of sensitivity towards some antibody which we devise or we experiment, जो हम फार्मा में पढ़ते हैं. Okay. For phenotypic methods, we use culture media. Which culture media? I tell you, it's MHA or MHB. What is the full form is Muller Inter
If it's a solid media, there can be two media. Solid type, then Muller, Hinton, agar. If it's a liquid media, we are having a liquid culture, then it is a Muller, Hinton broth. What do you prefer in antibody testing? We always prefer liquid media over solid media in testing, क्योंकि उसमें आसानी से diffusibility. For genotypic, we do not use any culture media. We use PCR technique. These are the techniques which we use. Okay, Muller, Hinton, agar तो ठीक है, but what are the methods? How we perform this antibiotic susceptibility testing? The first method is Kirby-Bohr disk diffusion method. Have you heard about it? Kirby-Bohr disk diffusion method. Okay. What we do is we take the culture plate, okay, and we make different zones. And these are aluminum capsules filled with antibody, okay, and the growth is surrounding them nicely. What would happen is कि जितना जितना एरिया होगा किसी भी एंटीबॉडी का, वो उतना उतना एरिया खाली कराती जाएगी. So it will make the zones of clearing. What we look for in Kirby-Bohr disk diffusion method, we look for zonal inhibition. किस एंटीबॉडी को कौन सी एंटीबॉडी से ये ज्यादा किल हो रहे हैं, उनकी पावर पता चल जाएगी, जिसके जितना ज्यादा स्पेस वो खाली कराती जाएगी. दिस इज Kirby-Bohr disk diffusion method. It is a very cheaper method. The second method, which is very costly, is dilution method. We use dilution method. Kirby-Bohr disk dilution method. And what does it tell us? It tells us one important thing, which is MIC. MIC is minimum inhibitory concentration. Minimum inhibitory concentration of an antibody. कि कितनी मिनिमम आपको चाहिए किलिंग इफेक्ट लाने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के खिलाफ. तो इट कैन टेल अस दिस पैरामीटर. द अदर method is newer method, that is E-strip. E-strips, they also work in the as dilution method, and they also they also work as disk diffusion methods, but we can use multiple concentration. We can test multiple concentration of an antibody. इन डिस्क डिफ्यूजन मेथड की एक जो डिस्क है उसके अंदर एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन भर दी, सो दैट विल गिव अस डाटा ऑफ दैट ओनली. लेकिन इसमें क्या है, हमें मल्टीपल कंसंट्रेशन का डाटा एक ही स्ट्रिप में पता चल जाता है. ओके, जो न्यूअर मेथड है, लेटेस्ट में जाते जा रहे हैं, दैट इज एन ऑटोमेटेड ब्रोथ डाइल्यूशन मेथड, जिसको वाईजैक क्या कहते हैं? वाईजैक क्या? ऑटोमेटेड ब्रोथ डाइल्यूशन मेथड. सिंपल. फोर मेथड्स we consider by culture method. As far as PCR is concerned, PCR how it works, ये कैसे बताता है? PCR में either the genotype of a organism is sensitive to some antibody, or it can be resistant. Okay, resistant होने का मतलब क्या है? उसके पास resistant जीन होगी. The organism will carry resistant gene, and it is related to antibody, not the antigen. That means there is a specific gene for a specific antibody. Let's say penicillin. तो पेनिसिलिन के खिलाफ जीन होगी. वो कोई जीन उस बैक्टीरिया स्पेसिफिक नहीं है. वो स्टेफाइलोकोकस में भी होगी तो भी उस जीन का नाम पेनिसिलिन जीन के खिलाफ होगी. वो स्ट्रेप्टोकोकस में होगी तो भी होगी. तो इट इज नॉट एंटीजन स्पेसिफिक, इट इज एन एंटीबॉडी स्पेसिफिक जीन, जिसका एक्सपोजर हो रहा है उसके खिलाफ ये जीन बनती है इन जेनेटिक मटेरियल. एक इसका एग्जाम्पल नोट करो, जैसे जीन्स में
एक होती है KAT जीन। आई होप यू हर्ड ऑफ। इट्स अ प्रोटेक्टिव जीन, प्रोटेक्शन इसका काम है। द जीन नेम इज कैट जीन। टीबी के अंदर हमने देखी है कैट जीन, अगेंस्ट आयन आइसोनियाजिड की होती है। So we will discuss some genotypic forms. Examples, genotypic resistance कैसे होता है? The example is Staph aureus. Staph aureus का एक स्ट्रेन होता है जिसका नाम है MRSA. Have you heard about this strain? Methicillin resistant Staph aureus. What is methicillin resistant Staph aureus? And the gene, that is MEC gene. The gene is MEC gene. The other example of molecular resistance is in Mycobacterium tuberculosis. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अंदर अलग अलग टाइप्स होते हैं, ससेप्टेबल, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंट, XDR MDR क्लासिफिकेशन होती है। लेकिन ये शो किसको करते हैं? दे आर रेजिस्टेंस किस में शो होता है? टू H and R। H फॉर आइसोनेजेड, R फॉर रिफेम्पिसिन। ओके, तो वन जीन विच वी डिस्कस्ड हियर, वन वाज कैट जीन, या फिर वन सेकेंड, कैट जीन और INHA जीन। दिस इज अगेंस्ट विच ड्रग? Isoniazid. Macgene was against methicillin. And there is rho gene, rho beta, that is against rifampicin. Okay, this is what we need to know about them. This is the whole thing you need to know about antibody susceptibility testing. And I will add a slide of image here, which we discussed till now. I hope it makes sense. This is Kirby-Bor disk diffusion method. ऐसा होता है, हम उसमें जोन ऑफ इनिबिशन देखते हैं। अगर कोई भी क्लियर जोन नहीं है, दैट मीन्स रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। These shells are filled with antibodies. Okay, this is E strip method. एंटीबॉडीज की स्ट्रिप्स होती है। लेट्स से यहाँ पे हमने पेनिसिलिन की दे रखी है और डिफरेंट कंसंट्रेशन मेजर होती है, एंड इट आल्सो गिव्स अस MIC, दैट इज मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। अगार एंड ब्रोथ डाइल्यूशन मेथड, ऐसा इमेज आएगा, ब्रोथ डाइल्यूशन मेथड, मिनिमम ऐसे कैप्स बने होंगे। ये भी हमें क्या देता है? MIC, ब्रोथ डाइल्यूशन। ऑटोमेटेड ब्रोथ डाइल्यूशन मेथड का नाम क्या है? वाइजैक। What would be the most preferred thing? Broth dilution or liquid culture. You will identify this antimicrobial susceptibility. Let's move forward to the second topic of general microbiology, which are scientists. There are few scientists जिनके बारे में हमें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। है तो काफी सारे माइक्रोबायोलॉजी की दुनिया में, लेकिन हमारे जो कुछ स्टार हैं उनको अच्छे से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वन इज एंटोन वन लेवेनहॉक। The scientist name is Anton von Leeuwenhoek. This is our first scientist. He is the father of microbiology, microscopy sir। मैं इसी के सामने लिख देता हूँ, सबके फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, और फादर पूरा लिख दो शॉर्ट फॉर्म, सॉरी, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी।
ओके। इसने फर्स्ट माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था। वर्क क्या था? फर्स्ट माइक्रोस्कोप। द सेकंड साइंटिस्ट वी नीड टू नो अबाउट इज लुइस पैस्चर। ये क्या है? ये है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। द फर्स्ट वन वाज फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, ही इज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। व्हाई आई एम सेइंग, क्यों इसको माइक्रोबायोलॉजी का फादर कह दिया गया? इसने चार काम किए। फर्स्ट, वैक्सीनेशन। तो कंट्रीब्यूशन इसके क्या है वैक्सीनेशन में? स्टरलाइजेशन। ही टॉट द कंसेप्ट ऑफ स्टरलाइजेशन, कैसे करते हैं। थर्ड, ही गेव द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, कि कैसे डिजीज होती है किसी इंडिविजुअल में, हाउ द डिजीज एंटर, एक्सपोजर, पैथोजेनेसिस, ऑल दैट शेबेनियंस गिवन बाय लुइस पैस्चर। द फोर्थ थिंग ही गेव इज लिक्विड कल्चर मीडिया। लिक्विड कल्चर मीडिया किसने बनाए थे? किसने बनाए थे? तो वी नीड टू रिमेम्बर हिम। ही गिव वन थ्योरी, one liquid, teach us how to sterilize and gave vaccine। तो वैक्सीन दी, किसकी किसकी दी वैक्सीन? वैक्सीन दी लुइस पैस्चर ने कार में बैठ के। क्या क्या? कॉलेरा, एंथ्रेक्स, रेबीज, all three vaccines were given by लुइस पैस्चर। स्टरलाइजेशन में इसने हमें किसके कंसेप्ट सिखाए? ही गेव अस द कंसेप्ट ऑफ ऑटोक्लेव एंड हॉट एयर ओवन। कि ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन का कंसेप्ट किसने दिया? लुइस पैस्चर ने दिया। एंड फिर इसने दी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। इसने दी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज और लोगों ने मानी नहीं। ये तो थ्योरी है, हम कैसे मान ले? तो उसने उसके एक्सपेरिमेंट के लिए, उसको प्रूव करने के लिए लिक्विड कल्चर मीडिया बनाया। और उसको प्रूव कैसे किया? उसने बोला देखो लिक्विड कल्चर मीडिया के अंदर आई कैन फाइंड टर्बिडिटी, दैट इज अ साइन दैट द बैक्टीरिया और द इन्फेक्शन इज देयर। अगर मैं कहूँ कॉलोनीज, तो कॉलोनीज सॉलिड मीडिया पे बनती है, अगार पे बनेंगी। टर्बिडिटी लिक्विड कल्चर मीडिया में बनेगी। लुइस पैस्चर। ओके। द थर्ड साइंटिस्ट जिसको और चुल मची थी, दैट वाज रॉबर्ट कोच। इसने हमें दो चीजें दी। एक्चुअली दी तो इसने भी हमें चार चीजें, अभी हम 2+2 याद करेंगे। फर्स्ट चीज इसने दी सॉलिड कल्चर मीडिया। तो इट बिकम्स ए क्वेश्चन कि सॉलिड कल्चर मीडिया किसने दिया और लिक्विड कल्चर मीडिया किसने दिया। ओके। कैसे याद रखेंगे? जिसने लिक्विड कल्चर मीडिया दिया होगा, ओके, तो दूसरे वाले ने सॉलिड दिया। तो सॉलिड कल्चर मीडिया पे क्या मिलती है? आई सेड कॉलोनीज। ओके। जब इसने सॉलिड कल्चर मीडिया दिया, उस पर कॉलोनीज मिली, तो इसने आइडेंटिफाई क्या किया? सेकंड थिंग इज इसने आइडेंटिफाई बैक्टीरिया। दूसरा काम इसने किया, आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी और फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। ओके। और जो इसने फर्स्ट बैक्टीरिया आइडेंटिफाई किया, इसके इसने तीन बैक्टीरिया एक्चुअली आइडेंटिफाई किए थे। दैट वुड बी CAT। फर्स्ट बैक्टीरिया विच वाज आइडेंटिफाइड बाय हिम वाज
टीबी। इसीलिए टीबी का दूसरा नाम कोच बैसिलाई भी है, या कोच डिजीज भी बोलते हैं टीबी। क्यों? क्योंकि उसको किसने ढूंढा था? रॉबर्ट कोच ने। सी फॉर कोलेरा इज देयर, ए फॉर एंथ्रेक्स भी मिला था। थर्ड, जब इसने बैक्टीरिया ढूंढ लिया तो इसने बोला यार ये बैक्टीरिया को ढूंढ ढूंढ तो लिया, कुछ तो है ये, लेकिन इसको पता नहीं था ये है क्या। तो उसने उसके कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमें बैक्टीरिया पता चल गया, लेट्स से हम साइंटिस्ट हैं, हम क्या करना चाहेंगे, उसको कलर करके देखना चाहेंगे। तो यस, स्टेनिंग का प्रोटोकॉल किसने डिवाइस किया? वो भी इसी ने किया, या बैक्टीरिया में घुस गया, कुल मिला के हमारा रोबोट कोच था, इसने स्टेनिंग दिया। और स्टेनिंग से इसे क्या पता चला कि यार जो थे स्टेनिंग से किल हो गए बैक्टीरिया। ही थॉट कि जो स्लाइड में पहले मूव होते दिख रहे थे उनका मोशन बंद हो गया, लेकिन वो अब कलर हो गए, है ना। तो इसने मोटिलिटी देखने के लिए क्या और चीज डिवाइस करी होगी? यस, हैंगिंग ड्रॉप मेथड ऑफ माइक्रोस्कोपी किसने दिया? टू सी मोटिलिटी। और कब देख सकते हैं? ऑन ऑयल ड्रॉप वेट माउंट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, यही टेक्निक है ना, ऑयल ड्रॉप वेट माउंट पे हम मोटिलिटी देखते हैं। तो लुइस पास्चर वैक्सीन स्टरलाइजेशन थ्योरी दी, लिक्विड कल्चर दिया। रॉबर्ट कॉर्च सॉलिड दिया और कॉलोनी देखी, कॉलोनी देखी, बैक्टीरिया ढूंढा, बैक्टीरिया ढूंढा तो उसको स्टेन कर दिया, स्टेन कर दिया तो मोटिलिटी चेक करने निकल पड़ा। दैट्स हाउ यू रिमेम्बर। ओके। द नेक्स्ट साइंटिस्ट इज पॉल अर्लिक। पॉल एलरिक, ही इज द फादर ऑफ कीमोथेरेपी। आ गया हमारी फादर सीक्वेंस, फादर ऑफ कीमोथेरेपी। हम इतने मॉडर्न साइंस में आ चुके हैं, हमें लगता है कीमोथेरेपी का मतलब होता है कैंसर। कीमोथेरेपी का मतलब जस्ट ड्रग गिविंग है, उसको भी तो कीमो केमिकल से थेरेपी। नॉर्मल इन्फेक्शन में भी तो हम कीमोथेरेपी ही करते हैं। मलेरिया का भी तो कीमो प्रोफाइलैक्सिस होता है। कीमो का मतलब और कुछ नहीं है ज्यादा। ओके। तो इसने दिया क्या? दो केमिकल्स की बातें कर रहे हैं, तो दो ही केमिकल्स की बात करेंगे। इसने कीमोथेरेपी में दिया, एक तो दिया सेलवारसन। सेलवारसन, सेलवारसन इज वाज अ ड्रग यूज्ड फॉर, वही है ना, जिस चीज में सलवारों की बात हो जाए तो कोई ना कोई एसटीडी आता है। ओके। द नेक्स्ट थिंग ही डिड वाज, इसने स्टेनिंग को आगे बढ़ाने का काम किया, कहता मैं ना एसिड फास्ट स्टेनिंग बनाऊंगा मेथड। एक स्टेनिंग मेथड रह गया था, तो वो किसने कर दिया? पॉल अर्लिक ने, जो फादर ऑफ कीमोथेरेपी था। ये बैक्टीरिया को मारने निकला था ना, एसिड फास्ट स्टेनिंग में भी तो हम यही कर रहे होते हैं, इतना H2SO4 यूज करते, ये करते वो करते, केमिकल्स यूज होते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग में। डू यू रिमेम्बर? ऐसा कुछ करते थे। 20% सल्फ्यूरिक एसिड, 5% सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड ही तो यूज करते थे, इसलिए उसका नाम एसिड फास्ट है। एसिड एक केमिकल है। दैट्स हाउ यू रिमेम्बर कि इसको केमोथेरेपी का फादर क्यों बोला गया। द फिफ्थ साइंटिस्ट वाज इग्नास सैम, लोग जस्ट राइट इट, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस। SEMME, क्लीवर्स, जस्ट रिमेम्बर इग्नास। ओके। इग्नास वाज फादर ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल। He was not a father of infection, he was actually father of infection control. ओके। तो इसने कंसेप्ट क्या दिया, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का बेस्ट मेथड क्या है? द कंसेप्ट ऑफ हैंड वॉशिंग वाज गिवन बाय इग्नास सेमले, जो भी है इग्नास ने दिया था। और कब की हैंड वॉशिंग का बोला था, ऐसा नहीं कि डिजीज को टच कर लिया उससे पहले, नहीं।
Before conducting any procedure, इसने बोला कि कोई भी प्रोसेस कर रहे हो आप किसी पेशेंट में, उससे पहले आप अपने हाथ धो लो। काफी सीधी बात। सिक्स्थ साइंटिस्ट वाज जोसेफ लेस्टर। जोसेफ लेस्टर, इसको बोलते हैं हम फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। ये सर्जरी में एंटीसेप्सिस का फादर बना, इसने वो सर्जिकल एंटीसेप्सिस बताया। क्या बताया? इसने हमें दिया फिनोल। क्या दिया? फिनोल केमिकल का यूज इसने समझाया कि फिनोल को तुम एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हो। ओके, तो लाइजोल एंड लिस्टर सेम्स familiar, and lysol is phenol. All the scientists and their contribution, टोटल 6 साइंटिस्ट हमने पढ़े। एंटोन वन लेवनोक, रॉबर्ट कॉच, एंटोन वन लेवनोक फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, ये सारे आई कैन हाईलाइट देम, बट इस सीक्वेंस में याद रखेंगे तो फोटोजेनिक मेमोरी हमारी बन जाएगी। ओके, 6 साइंटिस्ट, वी नीड टू रिमेम्बर ऑल। लेकिन क्वेश्चन ना फोटोज पे आता है, तो दो लोगों की फोटोज बहुत अच्छे से आती है बार बार, इनकी। If you have to revise, you need to revise these two. One is Louis Pasteur, microbiology, liquid culture, car. This person is रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच के पास कोई चारा नहीं है ये बाल वापस लाने का। द नेक्स्ट टॉपिक इन जनरल माइक्रोबायोलॉजी, क्या हुआ? पेस्चराइजेशन। कहाँ पेस्चराइजेशन? जो ही नहीं, लुइस पेस्चर, ये रहा यार। पेस्चराइजेशन का कंसेप्ट दिया भी होगा, लुइस पेस्चर ने दिया भी होगा, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। कोई क्यों पूछेगा ये क्वेश्चन? कोई अपने सीधे दिमाग में क्यों पूछना चाहेगा ये क्वेश्चन कि अच्छा बताओ पेस्चराइजेशन का चारों ऑप्शन में से एक दे दे लुइस पेस्चर। दैट वुड बी सो नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आवर कॉज। हाँ, पेस्चराइजेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज पेस्चराइजेशन, कंप्लीट डिटेल इन उसमें। बट उसको एज ए साइंटिस्ट के नाम पे कंफ्यूज करके क्वेश्चन बनाने का कोई पॉइंट नहीं बनता ना। तो हाँ, मैंने बहुत कम पढ़ा है, आई नो दैट, बट इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हम सिर्फ, मैं माइक्रो थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग माइक्रोबायोलॉजी, आई एम टीचिंग हाउ टू सोल्व माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू। माइक्रोबायोलॉजी इतने से साइंटिस्ट में काम चल जाएगा, 20 साइंटिस्ट की लिस्ट है, 20 से 25 है ऑन एन एवरेज अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। ये एंटीबॉडी ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग, आई डिडंट टीच यू एनीथिंग इन इट। आई जस्ट टीच यू कि क्या क्या होता है, क्या क्या वर्ड्स है, क्या क्या क्वेश्चन में आएगा। बिकॉज दे डोंट, क्या वो एमसीक्यू में ये थोड़ी पूछ लेंगे, ओके गिव मी द जोनल इनहिबिशन क्राइटेरिया, और एमआईसी की डेफिनेशन बताओ, एमआईसी अलग अलग ड्रग्स के केसेस क्या होते हैं, क्या आपके क्लिनिकल ट्रायल्स में कौन से मेथड, इट्स आउट ऑफ स्कोप। लेकिन अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हम ये सब पढ़ते हैं इन सेकेंड ईयर, ये हमें पढ़ाया जाता है। हालांकि समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन पढ़ाया तो जाता ही है स्लाइड्स में कि ऐसे हम प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, ऐसे हम रेजिस्टेंस जीन्स देखते हैं मशीन्स के थ्रू, ऐसे अच्छे अच्छे स्लाइड्स के पीपीटीज की क्लास होते हैं। हमारे क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन बेसिस पे आने हैं। ये पहचानो क्या ये था, ये है क्या, तुमने ये देखा है? नीट एग्जाम इज मोर लाइक, क्या तुमको ये बात देखी है? तुमने, तुम गए हो कॉलेज, तुम्हें पता है ये क्या था, क्या है, कंसेप्ट पता है कि इसके पीछे कंसेप्ट क्या, बेसिक्स पता है। दे ऑल लुक फॉर बेसिक्स। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सब्जेक्ट्स आर मोर ओवर टुवर्ड्स बेसिक्स, और वो वाले बेसिक्स जिसको तुम फाइनल ईयर से लिंक कर सकते हो, बस। इससे ज्यादा नहीं। साइंटिस्ट वाइंटिस्ट के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ये आईना ही में आएंगे, आईने सेट विल आस्क। What NEET will ask is hospital acquired infections control. They are more concerned with HIC, hospital infection
control. The third topic of our discussion. See, how can you prevent hospital infection को control कैसे करते हैं? First is by hand hygiene. The second thing which we know is PPE kits. उनको कैसे wear करना है. The third thing, of course, is sterilization and disinfection. कि खुद को कैसे बचाना है, पेशेंट को कैसे बचाना है इन सब चीजों से. The fourth thing is always जब तुमने सब कुछ बचा लिया तो जो तुमने इकट्ठा किया जिससे बचा लिया उसको कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ भी करना है, तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट. These are the four topics or four things which we require for a hospital infection control. है ना. हाथ को साफ कैसे रखें, बहुत सारे तरीके, ग्लव्स पहनते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो ठीक है. ग्लव्स के बिना कैसे साफ रखें, तो वी विल डिस्कस ऑल दैट थिंग, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आएंगे नीट के. दिस इज अ नीट टॉपिक और आईना ऐसा टॉपिक भी, लेकिन ओवरऑल तो ये इंपॉर्टेंट ही है, कुछ भी बोलो. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ हैंड हाइजीन. वो टॉपिक, लेट्स डिस्कस हाउ टू कीप योर हैंड हाइजीनिक. ओके, फर्स्ट वन लाइनर. हैंड हाइजीन is the most efficient method to prevent neonatal sepsis. Neonatal sepsis दो टाइप का होता है, अर्ली neonatal sepsis, लेट neonatal sepsis, based on the timeline 72 hours की and based on the gravity of the infection there. उसका मोस्ट एफिशिएंट मेथड, मोस्ट कॉमन नहीं कह रहा, बेस्ट मेथड या एफिशिएंट मेथड टू प्रिवेंट इज हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग और ये whatever. This is a neat PYQ. Okay, so what are the methods of hand hygiene? There are total two methods. One is hand wash, the other is hand rub. What is the time required to do both? How much time? वो बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, वो वाली बात नहीं है, but both should be done for at least 20 seconds minimum. This is the minimum time that should be required to do either hand wash or hand rub. Okay. The other thing is movements. कितनी होती हैं? टोटल 5 मूवमेंट्स होती हैं. How to wash your hands? You should perform 5 movements, and you will read it in PSM also. उसमें एक प्रोग्राम है सुमन के. Have you heard of सुमन के program? This is a program called. You will read it in PSM, but I am writing it here. So सुमन के program depicts the steps of how to hand wash. As for सीधा, फिर उल्टा, फिर मुट्ठी. It's a Indian guideline for our hospitals. फिर मुट्ठी, फिर अंगूठा, फिर नाखून, नखुनी, एंड देन लास्ट में कलाई. ओके, दिस इज द सीक्वेंस टू वॉश योर हैंड्स इन हिंदी. सीधा, उल्टा, फिर ऐसे हो गया ना, पहले सीधा, फिर उल्टा, फिर ठीक है, फिर मुट्ठी ऐसे, फिर अंगूठा, ये मुट्ठी हो गई, फिर अंगूठा ऐसे, ठीक है, फिर ये नाखून दोबारा से करते हैं, और फिर लास्ट में कलाई.
हो गया हैंड रब, हो गया हैंड वॉश, वाटर. आई होप it is clear. When to do, if hands are visibly soiled. That means you can see that your hands are dirty with your naked eyes. You don't need microscope to see, okay, either they are sterilized or not. आपको हाथ आपने हाथ देख के गंदे लग रहे हैं. You can see the visual soiling. So दोनों में से only hand wash should be done in those conditions. No hand rub. Hand rub is not recommended in a visibly soiled hands. Okay. Only which should be done? Hand wash. Clear? If not visibly soiled, then both. Not visibly soiled, then both. Hand hygiene समझ में आया? How to do hand hygiene? What are the points you need to know? What are the methods? What is the program? What is the sequence? Done? Let's move. Let's move. Okay. Now, WHO says, WHO has something to say about hand hygiene. WHO says when. It tells when to do hygiene. This was PSM में हमने ढूंढ लिया how. This is what needs to know about the hand hygiene methods and all that. WHO says when. When should you hand wash? There are 5 instances. 1, 2, 3, 4, and 5. That is before and after, before and after, and after. Okay. Before and after touching patient. Before you touch patient, you should have hygiene, hand hygiene. You should rub your with disinfectant or antisepsis. After touching patient, you should do it. Before doing any procedure on patient, after doing any procedure on patient, after checking some files or some tiffin box or some kind of accessory on the patient's bedside. That means after touching surroundings. If they tell you before touching surroundings, no, there is no need. After you touch some infected surroundings, you should wash your hands. Is it clear? This completes our hand hygiene. Let's move to second method. That is PPE kit. What are the things we need to know about PPE kit? One is there are parts in a PPE kit. What are the essential parts? If there is some essential parts, there will be some non-essential parts also. What are the essential parts? There are 4 essential parts. One is the gown, the other is the mask, goggles, and face shield. एक ही बात है, whichever is there. And the last one is gloves. These 4 are essential part of a PPE kit. What are the non-essential part? There are 2. One is cap, one is shoe cover. But in our ICU visits, they ask us, okay, either wear shoe cover or remove your shoes before coming inside to all the patients, all that thing. That is a non-essential thing to do. That doesn't prevent shit. The actual prevention of a PPE kit, you see, have you have you seen those people, ward boys, nurses? They try to emphasize, okay, मैंने cap तो पहनी है, मैंने shoes cover पहने. Okay, they work in opposite. That is not what needs to do. That those 2 things are non-essential, but they are essential if you want to enter an ICU. See how the paradox the system is.
आई एम नॉट सेइंग इट्स द गाइडलाइन, मतलब इट्स आवर प्रिस्क्रिप्शन, ओके। शू कवर तो इंपॉर्टेंट होते हैं, नो दे आर नॉन एसेंशियल, दैट्स व्हाई दे आस्क द क्वेश्चन इन एग्जाम्स। I tell you, if something is a controversy or something is a paradox, which should be a common knowledge to each and every doctor, but not followed, that will become a question in need, because they want you to know. Okay, you have to, you should have the common sense for that. Okay. Now the second question parts. Okay, what is the sequence to wear it? How should we wear it? So sequence, the wearing of PP kit called donning. DONNING. Donning means owning. You are putting it on. Simple. And if you remove it, that is not downing. Doffing. You are putting your PP key out in off mode. Okay. First, you should wear your gown. Then comes mask. Then comes your goggles or face shield. At last, you wear gloves. दिस इज टिपिकल ओटी सेटअप। आप ओटी में एंटर होते हो, सबसे पहले आपको गाउन पहनाते हैं, फिर मास्क पहनाते हैं, फिर आपको गोगल्स पहनने होते हैं, और लास्ट में आपको ग्लव्स पहनाते हैं, बिकॉज ग्लव्स आर द थिंग्स which will be in contact with patient most, so it should be wear last. Okay. तो जब रिमूव कर रहे हैं तो सबसे पहले वो चीज रिमूव होनी चाहिए जो सबसे ज्यादा कंटेमिनेटेड होगी, दैट आर ग्लव्स, देन गोगल्स और फेस शील्ड, देन गाउन, देन मास्क. See the sequence change in last. See, how I used to remember is कि मास्क पहन के तुम बाहर निकलोगे ओटी से, यू विल नॉट बी लुक्ड एट एज वियर्ड. लेकिन तुम ओटी का गाउन पहन के, पीपीई किट का गाउन पहन के बाहर निकल जाओ, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है. तो यहाँ पे ऑर्डर रिवर्स हो गया. अच्छा, ये तो सब बातें ठीक है, बट द थिंग इज कि स्टिल आफ्टर बीइंग दिस मच क्लियर वी टेंड टू फॉरगेट इट. ओके, so I have made this Gudda. Okay, I will go below upward till my face and then move to the side. This is the direction of donning. I am putting, it's like Iron Man suit. This is the direction. I will go here, then I will go here. Simple. I am going till the top, then I am coming down. So what are the things I will wear? Gown, mask, face shield, then gloves. This is the sequence. Okay. नीचे से ऊपर गए, ऊपर तक पहुंचे, आइस तक फिर इधर चले. That's how you should wear a PP kit. Now I think it's a bit simpler now when you don't need to remember it. And mask पहन के तुम बाहर जा सकते. One thing you need to know after wearing the gloves, you have wear the gloves. What should we do? Not do. We should not touch ourselves with the gloves. ग्लव्स पेशेंट टच हो रहा है, हमको खुद को टच नहीं करना है, अपने गाउन को टच नहीं करवाने लेना ग्लव से. और कर भी लिया है, क्योंकि अब तुम ग्लव्स उतार दोगे, फिर वो जो ग्लव्स वाला मटेरियल था वो गाउन पे होगा. अब तुम गाउन को उतारोगे अपने बेयर हैंड से, तो फिर कहाँ गया तुम्हारा स्टेरिलाइजेशन, कहाँ गया तुम्हारा प्रिवेंशन. तो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड. पीपीई किट्स. ओके, लेट्स मूव टू one thing. Okay, I have written this thing, sterilization and disinfection before now. We will discuss BMW first. What is BMW? Biomedical waste management. So the first thing we should concerned about this topic should be कि what is biomedical waste management. इसकी डेफिनेशन क्या है. तो इसी पे भी क्वेश्चन आ गया था, क्योंकि उनको लगा था कि इनको कहाँ ही पता होगा कि डेफिनेशन क्या. डेफिनेशन इज एनी वेस्ट विच कम्स इन कॉन्टेक्ट विद पेशेंट और
infection. That means any waste which comes in contact with patient or any waste which is of infectious nature. Okay. Whatever the other waste material, rest all which is not BMW. Either a waste is biomedical or either a waste is not biomedical. All non-biomedical waste should go to black bag or black empty vacuum. Black shade, black empty vacuum. रेस्ट ऑल जो बीएमडब्ल्यू हैं उनको हम क्लासिफाई कर देते हैं चार क्लासेस में कि चार तरीके के बिन है. द वन वी आर टॉकिंग अबाउट इज, नाउ मेक दिस टेबल, इट्स अ फ्लो चार्ट. येलो, रेड, ब्लू, white. These are the four colors which we need. Okay. So what are the type of material? It is decided on the type of material, which type of material you are using. It's not based on कि कहाँ से था, human anatomical way, cytotoxic, वो सब रटना नहीं है. हमें किस बात पे डिपेंड करना है कि जो भी मटेरियल हम फेंकने जा रहे हैं, जो भी कंटेमिनेटेड मटेरियल है, इससे फर्क नहीं पड़ता वो क्या है. इससे फर्क पड़ता है वो जो मटेरियल है वो किस चीज का बना हो, उसका मटेरियल क्या है. सो उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे. 2 पॉइंट्स याद रखेंगे. इफ इट इज आइदर कॉटन और एनी क्लॉथ, कपड़ा है या फिर कपास है, तो वो येलो जाएगा. अगर कोई प्लास्टिक है, और प्लास्टिक का ही दूसरा फॉर्म क्या है, रबर है. मटेरियल क्या है, प्लास्टिक है या फिर रबर है, तो उसको हम कहाँ भेजते हैं, रेड में. कोई ग्लास है, कोई ग्लास है या फिर मेटल है. मेटल यानी, मेटल यानी जैसे कि इम्प्लांट हो गया. ओके. तो ग्लास और मेटल कहाँ जाएगा, ब्लू में. और व्हाइट में फिर क्या जाएगा, व्हाइट में जाएगा शार्प. क्या जाएगा, शार्प्स. कौन से शार्प्स, मेटेलिक शार्प्स. तो तुम कहोगे यार सर आपने तो बोला था कि मेटल सारे ब्लू में जाएंगे, लेकिन जो मेटेलिक शार्प्स हैं, जैसे ब्लेड्स, एनीथिंग शार्प, ब्लेड्स which can puncture anyone, which can injure anyone if left around, will go to white. एंड व्हाइट कभी बैग नहीं होता, व्हाइट कभी बैग नहीं होता. व्हाइट जो कंटेनर होता है, इट्स ए पंचर प्रूफ कंटेनर. इट्स ए कंटेनर, इट्स नॉट ए नॉर्मल डस्टबिन, इट्स ए कंटेनर. तो इन सब का फेट क्या होता है, मतलब फेट से पहले अब हमने दो दो मटेरियल सबके लिख लिए. दो मटेरियल येलो में थोड़े से और ऐड कर देते हैं. एक ऐड कर देंगे कोई भी मेडिसिन है, कोई भी मेडिसिन. एक ऐड कर देते हैं कोई भी टिश्यू. अब कोई भी मेडिसिन का कहने का मतलब क्या कह रहा हूँ, वो कोई मेडिसिन जो पेशेंट की है, वो कोई मेडिसिन जिस पे ब्लड लग गया, आई डोंट. लेकिन एक मेडिसिन कहीं पड़ी है टेबल पे, तुम्हें नहीं पता किसकी है, तुम उसको येलो बैग में डालोगे, ब्लैक में. ब्लैक. यू गेट दिस पॉइंट. कोई मेडिसिन लेके आया पन्नी में, मेडिसिन पेशेंट की है, पेशेंट की मेडिसिन है, वहीं पे पन्नी पड़ी है. ठीक है, पन्नी रिलेटिव रखते हैं, वो पेशेंट की मेडिसिन है और मेडिसिन उसके हाथ में थी, और मेडिसिन की गोली उसने वही टेबल पे रख दी. अब तुम कह रहे हो कि टेबल साफ करो, वो को और वो ये कि कहाँ फेंकना है डॉक्टर साहब ये. तो गोली जाएगी येलो में, पन्नी जाएगी ब्लैक में. क्यों, क्योंकि पन्नी को तो पेशेंट ने टच नहीं किया, उसको जब गोलियां निकाल के कौन दे रहा है, रिलेटिव. सी, एन नंबर्स ऑफ मल्टीपल सिनेरियो क्वेश्चंस कैन बी देयर
तो यू हैव टू अप्लाई योर कॉमन सेंस कि ओके क्या क्या किस में जाना है, यही गेम खेलना है, मैच द फॉलोइंग का। ओके, कुछ एक्सेप्शंस है वो हम नोट करते हैं। तो चार कैटेगरी हो गए। कॉटन क्लॉथ तो हो गया था, मेडिसिन और एनी काइंड ऑफ टिश्यू। अब टिश्यू कुछ भी हो सकता है। लेट्स से आई एम टेलिंग यू प्लेसेंटा, किसी प्लेसेंटा मेरे हाथ में कहाँ रखूं? आई विल लुक फॉर येलो बैग और डैम। बच्चा पैदा हो गया, स्टिल बॉर्न हो गया या स्टिल बॉर्न हुआ, उसके साथ पीछे पीछे एक छोटा ट्विन आ गया, छोटू सा सैंपल निकाल दिया। बोलता है अच्छा मैं बायोप्सी करने, सैंपल करना, कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना। तो कहाँ फेंके? येलो बैग। ऐसे नहीं सोचना कि येलो बैग में सब कुछ जा रहा है। मटेरियल की बात है, वी आर टॉकिंग अबाउट टिश्यू। किसकी उंगली कट गई, वो उंगली को कहाँ फेंकेंगे? इट्स ए टिश्यू, इट डजेंट मैटर क्या है। ओके, तो टिश्यू है, उसको हमने एक काली पन्नी में पैक कर रखा था, लेके आए, किसी आंख फाड़ दी, कोई माफिया गैंग का था। काली पन्नी को कहाँ डालोगे? नाउ इट इज इन्फेक्शियस, नाउ इट इज इन्फेक्शन एंड इट इज प्लास्टिक रेड। इट इज इन्फेक्शियस ना, ब्लड लग गया उस पे। और मटेरियल क्या है? प्लास्टिक और रबर। तो वो प्लास्टिक था, रिसाइकल होएगा। ओके, दिस मच इज क्लियर। ओके, अब येलो मीडिया कहता है कि नहीं, मेरे अंदर एक और चीज डालो, जिसको बोलते हैं कल्चर मीडिया। कहता है मैं सारे कल्चर ले लूंगा। सो कल्चर मीडिया, टिश्यू, मेडिसिन, क्लोथ, कॉटन, ऑल वी वांट टू गो टू येलो। प्लास्टिक, रबर वांट टू गो टू रेड, ग्लास एंड एनी काइंड ऑफ मेटल विच इज नॉट शार्प विल गो टू ब्लू। क्या है, क्लियर है बात? क्या इतने में अपन आगे बढ़ सकते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फेट? आई आस्क यू द फेट। कि हमने इन डब्बों में डाल तो दिया, इनका होगा क्या? इनका होगा ये कि जो येलो वाले हैं, जो येलो वाले हैं, इनको कर दिया जाएगा डिस्ट्रॉय। बाय किससे किया जाएगा ये जानना इंपॉर्टेंट। इंसिनरेशन, जला दिया जाएगा इनको। ओके, क्या कर दिया जाएगा? इंसिनरेट। जो रेड और ब्लू हैं, इन दोनों का फेट कहता है इन्हें क्या कर दिया जाए? इन्हें किया जाए रिसाइकल एंड रीयूज। क्या है इनका फेट? रिसाइकल एंड रीयूज। लेकिन क्या रिसाइकल एंड रीयूज ऐसे ही कर देना चाहिए? नहीं। फर्स्ट दे शुड बी प्रॉपरली स्टरलाइज्ड, देन वी विल रिसाइकल एंड रीयूज। क्या येलो वाले मटेरियल को स्टेरलाइज करना चाहिए पहले, या सीधा इंसिनरेट कर देना चाहिए? स्टेरलाइजेशन का मतलब ये है कि फर्स्ट यू डिस्ट्रॉय इट बाय स्टेरलाइजेशन प्रोसेस एंड देन यू इंसिनरेट। Incineration is also is a sterilization process, I tell you। तो बताने की जरूरत नहीं है, ये भी स्टेरलाइजेशन ही हो रहा है इसका। What should we do with white? I'm telling this is a puncture proof container. Take that container and you should bury it. You should not destroy, bury it in landfill। दुनिया की नजर इस डब्बे को रखाओ, एक गड्ढे में फेंक के आओ। आई होप दिस मेक सेंस टिल नाउ। ओके, नाउ आई विल मेक सर्टेन सिनेरियो फॉलोइंग दिस फ्लो चार्ट। आगे आगे बढ़ते जाते हैं। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन टू ए पीपीई किट इफ आई वांट टू यूज ए पीपीई किट? पीपीई किट का क्या करूं? पीपीई किट में मास्क क्लोथ का होता है, मास्क विल गो हियर, बिकॉज मास्क किसका बना होता है? कपड़े का बना होता है। ओके, ग्लव्स कहाँ रखे? ग्लव्स कहाँ रखे? यहाँ रखो। ओके, गॉगल्स, फेस शील्ड,
गॉगल्स, प्लास्टिक, फेस शील्ड, और क्या बचा? गाउन। गाउन क्या है, कपड़े का होता है प्लास्टिक का होता है? कपड़े का होता है गाउन। कैप, नॉन एसेंशियल्स पे आते हैं। कैप, शू कवर। ओके, मेक सेंस। हमने क्लासिफाई कर दिया पीपी किट को कैसे स्टरलाइज करना है, ऐसे ऐसे डाल दो डब्बे में। ओके, कोई कंफ्यूजन? कभी कभी क्या होता है, जो कैप होती है या जो शू कवर होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। कभी कभी क्या होता है, कैप और शू कवर होते हैं प्लास्टिक होते हैं, बट वी कैन नॉट रिसाइकल देम। दे गेट डिस्ट्रॉयड इन द प्रोसेस। उसको स्टरलाइज कुछ भी प्रोसेस के थ्रू गुजारते हो तो वो स्टरलाइज होते ही डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। जब उनको डिस्ट्रॉय ही होना होता है, उनका फेट इसलिए चेंज नहीं है। जो ये कैप होते हैं और शू कवर होते हैं, कई बार ये रेड में आ सकते थे, लेकिन ये डिस्ट्रॉय ही हो जाते हैं। इतना इनकी रीयूजेबिलिटी नहीं है, ये वो फेट को सह नहीं पाते, तो इसलिए भले ये प्लास्टिक को कहाँ आते हैं, येलो में। ओके, इट्स वन एक्सेप्शन, इट्स अ conceptual एक्सपेक्शन expectations, द अदर इज, फ्यू सिनेरियोस देखते हैं। आई आस्क यू कॉटन स्वैब। अब एक किसी का सैंपलिंग ले रहे हैं, इन्हें सैंपलिंग क्या क्या सैंपल्स बनेंगे। कॉटन स्वैब कहाँ जाएगा? इट इज कॉटन। सिरिंज कहाँ जाएगी? येलो, रेड। सिरिंज मीन्स प्लास्टिक सिरिंज ना, सिरिंज तो कुछ भी हो सकता है, उसमें निडल थोड़ी है। ग्लास, ग्लास स्लाइड जो होती है हेमाटोलॉजिकल लैब की। स्लाइड्स या ग्लास स्लाइड्स, मैं कहता हूँ अच्छा दो, ये सारी स्लाइड्स ही, ये सारे पे तो हमने सैंपल ले लिया ब्लड के माइक्रोस्कोपी में, ये सारी फ्री पड़ी हैं, इनमें कुछ मिक्स पड़ी हैं फ्री फ्री वाली, ऐसे। तो नॉर्मल ग्लास स्लाइड लिखा गया क्वेश्चन पे, उसको कहाँ पे फेंकेंगे? ऐसे हल्की सी स्लाइड टूट गई और हमने यूज नहीं करी सैंपलिंग के लिए, उसको कहाँ फेंकें? उसको फेंकेंगे ब्लैक में। समथिंग विच इज नॉट ए बायोमेडिकल वेस्ट इज नॉट ए बायोमेडिकल वेस्ट, एंड इसलिए ब्लैक वाला डस्टबिन सबसे बड़ा होता है हॉस्पिटल में। ओके, क्योंकि बाकी सारा कचरा तो किसी ने खाना खा लिया वही जाता है। रेड या येलो बॉक्स में थोड़ी डालते तुम खाने का कचरा, नहीं, वो अलग ही पड़ा होता है। यू शुड ऑब्जर्व व्हेन यू गो टू कॉलेज। ओके, ग्लास स्लाइड हो गया। सिरिंज विद निडल। अब सिरिंज, कुछ ऐसी सिरिंज आती है जिनकी निडल डिटैचेबल ही नहीं होती। ऑल्दो इट इज प्लास्टिक, लेकिन इसका प्लास्टिक रिमूव तो नहीं हो रहा, निडल तो शार्प है, तो वो कहाँ जाएगा? व्हाइट कंटेनर बॉक्स में। कौन सी ऐसी निडल्स होते हैं जो फिक्स जाते हैं? इंसुलिन सिरिंज, जो इंसुलिन की सिरिंजेस आती हैं, अरे हॉस्पिटल में हम नहीं रखते, लेकिन जो कमर्शलाइज्ड होती हैं, जो पेशेंट्स को दी जाती है, हेपारिन की आती है, 0.1 ml डर्मा सिरिंजेस आती हैं, वो सारी। हेपारिन का इंजेक्शन और जो इंसुलिन का इंजेक्शन होता है ना, वो पहले से बन के आया होता है पीछे से, फैक्ट्री से, वो ऐसा ही आता है, फिक्स सिरिंज होती है। कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो जिसको तुमको बनाने में टाइम नहीं होता है, ऐसे कुछ एड्रेनालिन के भी शॉट्स आते हैं, बने बनाए जाते हैं, फिक्स्ड होते हैं वो, उनको तुम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, तो आते हैं ऐसे। अगर एम्प्यूल्स, जो अभी सैंपलिंग की बात कर रहे हैं, एम्प्यूल ले लिया कोई, और एम्प्यूल अभी टूटा नहीं है, उसके अंदर कोई सैंपल था, उसको कहाँ फेंकेंगे? वैक्यूटेनर है, पर्पल कलर का, रेड कलर का, कोई सा भी, उसको कहाँ फेंकेंगे? एम्प्यूल, एम्प्यूल किसी मेडिसिन का है, ये शीशी है, ग्लास की थी वो तो, ग्लास वाली शीशी में ऐसे इंजेक्शन से निकालते हैं ना, लेकिन वो है क्या, इसके अंदर क्या है? मेडिसिन है, मेडिसिन है, और वो ग्लास तो ग्लास है, कोई बात नहीं, लेकिन ग्लास ऐसे वाला ग्लास नहीं है, उसमें मेडिसिन अंदर है, तो मेडिसिन वाले के हिसाब से यहाँ चला जाता है। जो एम्प्यूल्स हैं, चाहे वो मेडिसिन के हो चाहे वो वैक्सीन के हो, वैक्सीन के भी एम्प्यूल्स होते हैं, मेडिसिन एम्प्यूल्स, वैक्सीन एम्प्यूल्स। द की वर्ड इज अनब्रोकन।
कि टूटे ना हो बस। लेट से अगर वो टूट गए, ब्रोकन एम्प्यूल्स। यू सी व्हाट इज द स्टोरी विद एम्प्यूल्स। तो हमें एम्प्यूल से खतरा क्या है? अगर एक एम्प्यूल बंद है और साबुत है, हमें खतरा अंदर की मेडिसिन से। हम उसको येलो में डालेंगे, हमें वो मेडिसिन डिस्ट्रॉय करनी। अगर वो टूट गया है, मेडिसिन बाहर जा चुकी है या नहीं जा चुकी, तब भी, तब उससे खतरा क्या है? उसके ग्लास की प्रॉपर्टी की वजह से। नाउ दैट मटेरियल इज व्हाट मेकिंग अस एट रिस्क। तो दैट्स व्हाई ब्रोकन एम्प्यूल्स कहाँ जाएंगे? ब्लू में। जबकि अनब्रोकन एम्प्यूल्स कहाँ जाएंगे? येलो में। देयर इज अ फोलिज कैथेटर। फोलिज कैथेटर कहाँ जाना चाहिए? फोलिज कैथेटर प्लास्टिक का होता है। कोई भी कैथेटर प्लास्टिक का होता है। एनी कैथेटर, आई एम गिविंग एन एग्जांपल। फोलिज कैथेटर। फोलिज कैथेटर से जो जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? यूरिन बैग। फोलिज कैथेटर इज अटैच टू ए यूरिन बैग, और यूरिन बैग किसका बना हुआ है? प्लास्टिक का। बट यू कैन से ओके सर, ये प्लास्टिक का तो बना हुआ है यूरिन बैग, लेकिन इसके अंदर तो यूरिन है। ये तो एनाटॉमिकल वेस्ट या ये सब आप बोलोगे मुझे कुछ। टिश्यू है। यूरिन कोई टिश्यू है? बेसिक कंसेप्ट बताओ, क्या यूरिन कोई टिश्यू है? नहीं। अगर यही सेम बात मैं ब्लड बैग के बारे में बोल दूं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। करो रट्टे मारो, रट्टे मारो, क्यों मारो भाई? ब्लड टिश्यू है। हमने टिश्यू की बात करी है, यूरिन टिश्यू नहीं है। यूरिन टिश्यू उसमें एक भी सेल, मतलब ठीक है होंगे आरबीसी वारबीसी, अरे उसके थोड़ी। उसको तुम कहोगे अच्छा ये तो हिमेटूरिया वाला यूरिन था, अब इसका क्या करें? ये अच्छा क्वेश्चन है। दैट इज ए रियली ग्रेट क्वेश्चन। कोई ग्रोथ हिमेचूरिया, अरे तो उसको फिर हम येलो में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सी, दिस इज अ प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन। यू शुड हैव द थिंकिंग कि क्या बन सकता है। तो ब्लड बैग कहाँ जाएगा? ब्लड बैग यहाँ पे इसलिए जा रहा है, इवन दो द बैग इज प्लास्टिक, अंदर ब्लड है। वी आर कंसर्न अबाउट ब्लड। और ब्लड एक टिश्यू है। सॉरी, मतलब याद रखने के लिए तो ठीक है कि एक अपोजिट कर दो। बीटीआर में भी अच्छे से दे रखा है कि येलो का इधर कर दो, इसका इधर कर दो, बट आई थिंक कि उससे काम चलेगा नहीं। यू शुड हैव ए क्लियर कट कंसेप्ट कि हो क्या रहा है। चलो आगे। कोई भी निडल है, ऐसे ही सेपरेट निडल है, या स्कैल्पल है, या आईसीडी ड्रेन करने के लिए जब आईसीडी करते हैं प्रोसीजर, उसके लिए जो हम ब्लेड से कट लगाते हैं, स्कैल्पल नहीं तो ब्लेड है। वो सारे कहाँ जाएंगे? व्हाइट में। वो सारे कहाँ नहीं जाएंगे? ब्लू में नहीं जाएंगे। तो ग्लास स्लाइड्स और ब्रोकन एम्प्यूल्स। द वर्ड की इंपॉर्टेंट इज ब्रोकन एम्प्यूल्स, यहाँ जाएगा। आई टोल्ड यू टिश्यू एंड कल्चर मीडिया तो हो ही गया, ये याद रखना। ब्लड बैग हो गया। और कौन सा याद रहेंगे? एक जो कल्चर है, इवन दो इट इज ए कल्चर, हम उसको रीयूज करना चाहते हैं। एक बोतल है जिसको बोलते हैं ब्लड कल्चर बोटल्स। बड़ी महंगी आती है, 1300 1400 रुपए की बोतल बोतल होती है। 600 700 की पड़ती है डिस्काउंटेड प्राइस पे। लेकिन टेस्टिंग ब्लड कल्चर की इन्वेस्टिगेशन 1200 1300 रुपए की होती है ऑन एन एवरेज, लाल पैथ पे या यहाँ पे। ये प्राइसिंग 2000 तक ले लेते हैं मेजर सिटीज में। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बोतल, ओके। ऐसा नहीं है कि इसको तुम डिस्ट्रॉय कर दो। भले वो ब्लड कल्चर की है, उसको हम कहाँ ले जाते हैं? इट्स एन एक्सेप्शन, इवन दो इट इज कल्चरिंग ब्लड। इट इज अ कल्चर मीडिया, इसमें ब्लड भी होगा, लेकिन ये बोतल बड़ी एक्सपेंसिव है एंड डिफिकल्ट टू सस्टेन। तो ब्लड कल्चर बोतल कहाँ जाती है? यहाँ पे। सिमिलरली वैक्यूटेनर्स कहाँ जाते हैं? भले ब्लड यूज वैक्यूटेनर्स हैं प्लास्टिक के, ये कहाँ जाएंगे? कैसे करेंगे? मतलब तुम कहोगे सर इसके अंदर तो हमने सैंपल ले लिया, अब क्या करें? ओपन करो, ब्लड उधर डालो येलो में, बंद करो, इसको यहाँ फेंको। यही तो करना है।
यही तो करना है। प्लास्टिक का वायल तुमको, सर इसमें तो ब्लड आ गया, अब ये क्या है? ये तो प्रैक्टिकल थिंग होगी। बट व्हाट टू मार्क इन एमसीक्यू? यू शुड मार्क रेड। वैक्यूटेनर जाएगा कहाँ? भले ब्लड हो भले ना हो, ब्लड हो तो ब्लड निकाल के, लेकिन वैक्यूटेनर कहाँ जाएगा? द स्पेसिफिक्स ऑफ ए क्वेश्चन इज वैक्यूटेनर हमेशा रेड में जाएगा। आई होप ये अप्रोच थोड़ी सी कंसेप्चुलाइज करी हो कि हमें कैसे वेस्ट मैनेजमेंट करना है। एंड लेट्स हैव ए लुक। हमने कुछ एग्जांपल थे, सैम्पलिंग के एग्जांपल्स लिए, हमने क्राइटेरिया डिस्कस किया। दिस वाज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्राइटेरिया। ओके। इसमें एक केस आता है किसका? एक केस आता है थर्मोमीटर का। ओके। थर्मोमीटर को आप कैसे, या थर्मोमीटर नहीं तो कोई और डिवाइस होगा जिसमें मर्क्यूरी हो? मैग्नो मैनोमीटर। अब तो ये प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉनिक आ गया, इलेक्ट्रॉनिक बीपी, टेम्परेचर के भी डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक आ गए, या एनारॉइड फंक्शनिंग वाले आ गए, लेकिन पहले वाले। और इनको डिस्कार्ड की पोजीशन कब बनेगी, ये बायोमेडिकल वेस्ट कब बनेंगे? पहली बात तो ये ब्रोक होंगे, दे शुड बी ब्रोकन। तभी तो ये कंसर्न है हमारे लिए। थर्मोमीटर टूटेगा, क्योंकि मैनोमीटर का मरकरी टूटेगा, मरकरी बाहर निकलेगा मतलब है कि उसमें कुछ टूटा है, क्योंकि वो तो ग्लास कॉलम के अंदर है। और ब्रोकन ग्लास कौन से बैग में डालेंगे इसको? मशीन को कहाँ डालेंगे? इज इट फाइन? अब जो उसके अंदर से मरकरी निकल गया, इसको कैसे क्लीन करेंगे? या इसको किसी बैग में डालेंगे? नहीं नहीं नहीं, इसको किसी भी बैग में नहीं डालेंगे। इसको क्या हैंड से टच करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं करेंगे। करेंगे क्या फिर? करेंगे, तीन स्टेप प्रोसेस कर सकते हो तुम। पहला, कोई सिरिंज लो और उससे वो सैंपल को जो फर्श पे गिर गया उसको सक करके स्टोर कर लो। सेकंड, बाय यूजिंग कार्डबोर्ड्स, ड्राई कार्डबोर्ड्स। ठीक है, दो कार्डबोर्ड लेंगे और उनको उठा लेंगे, मरकरी जो गिरी हुई है, एक कार्डबोर्ड से ऐसे करके दूसरे पे, हाथ नहीं लगाएंगे। डू नॉट टच इट। जैसे ही ये सैंपल को आपने उठा लिया या सिरिंज में डाल दिया, अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद जो हम करेंगे वो है, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे एक कंटेनर में जिसमें पानी भरा हो। ओके। इसको एक कंटेनर में भेज देंगे जिसमें पानी भरा हो। अब मुझे एक बात दो, क्या थर्मोमीटर पिघो मैनोमीटर कोई बीएमडब्ल्यू का पार्ट हो सकता है? बायोमेडिकल वेस्ट, ये कोई बायोमेडिकल वेस्ट है? ये तो करोसिव है, या फिर इनऑर्गेनिक वेस्ट है। सो इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू का सिर्फ इसमें एक ही पार्ट है कि शायद ब्रोकन ग्लास है, तो वो हम इसमें डाल सकते हैं। बाकी का डिफरेंट मैनेजमेंट है। क्या यहाँ तक बात क्लियर अपनी? कोई दिक्कत? जनरल माइक्रोबायोलॉजी हमारी चल रही है, अभी तक कोई भी कंसेप्ट ना समझ में आया हो, या याद, याद तो भी करना पड़ेगा। आगे बढ़े। द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ जनरल माइक्रोबायोलॉजी इज स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। यू वॉन्ट बिलीव कि जनरल बैक्टीरियोलॉजी के नाम पे ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं, विच यू डू। ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। व्हाट इज स्टरलाइजेशन मीन्स? स्टरलाइजेशन मीन्स किल ऑल। स्टरलाइजेशन मीन्स किल ऑल, kill all forms of life. Disinfectant means kill all except spores. Sterilization means kill all, and disinfectant means kill all except spores. तो इन दोनों में से बेटर कौन सी हुई? Better is to sterilize. Sterilization is more safer than disinfection. Clear?
ओके, नाउ क्योंकि स्टरलाइजेशन इज मोर इफेक्टिव है तो मैं इसको अब रेड से रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, इट्स ए मोर बेटर मैकेनिज्म, तो ज्यादा खतरनाक है। डिसइंफेक्टेंट को मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द मेथड्स, what are the methods of sterilization and disinfectants? So there can be two methods. Either there can be physical method or there can be chemical methods. फिजिकल मेथड में जो एजेंट्स यूज होंगे वो फिजिकल एजेंट्स यूज होंगे, टेम्परेचर, कोल्ड, समथिंग दैट। केमिकल मेथड्स में केमिकल एजेंट्स यूज होंगे, है ना, सम काइंड ऑफ एसिड और रिएजेंट्स। केमिकल, देखो फिजिकल एजेंट्स विल ऑल स्टरलाइज, दे डोंट पार्शियल, they will do the sterilization, they will kill all. If we doing any physical cleansing, it will kill all, it cannot differentiate in between things. Like, but chemicals are very discriminating, some are weaker, some are hard, some are strong, some are moderate. So chemical agents can cause sterilization also, but chemical agents are also disinfectant. In disinfectant there can be either disinfectant, actual proper disinfectant, yes they kill all except spore, or disinfectant can be some kind of those disinfectant, they kill all except spores. But fewer disinfectants are made for any surface. सरफेस मीन्स किसी भी फर्श पे, फ्लोर पे, कहीं पे भी, विच इज नॉट अस, हम सरफेस नहीं, हमारा स्किन है बॉडी पे। दोज डिसइंफेक्टेंट्स which can be used on skin are called as एंटीसेप्टिक। क्या कहते हैं? वो डिसइंफेक्टेंट्स, वो स्टरलेंट्स नहीं, वो डिसइंफेक्टेंट्स जो हम यूज करते हैं अपने स्किन को टच करने में, उनको क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक्स। ओके, नाउ टू प्रोसेस आई एम गोना डिस्कस here only in this method of two star products. One is pasteurization, because I don't want to explain it further, and the next one is tyndallization. Why I'm writing here, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है और दोनों आपस में कंफ्यूज कर देते हो, तो एक ही जगह पे लिख लो तो अच्छा है। पैस्चराइजेशन के दो मेथड होते हैं, वन इज होल्डर, द अदर इज फ्लैश। ओके, at 63 degree centigrade for 30 minutes, okay, 63 degree centigrade for 30 minutes we are keeping the sample or blood, and it will lead to the disinfection or sterilization. One exception is one thing escaping, except which survives, coaxilla survive। कौन सर्वाइव कर जाता है पैस्चराइजेशन को? कोएक्सिला survive in pasteurization. Coaxilla cannot kill Coaxilla burnetii or Coaxilla species of bacteria. So how to remember hold her? Okay. You want to hold her. You like to be the number to be 69, but you can't. But you have 63 plus 3 in the minute, and m is 3. To remember it is not seconds. You want to hold her in 69, to get to the 69 you have 63, add 30 minutes ka 3, and yes, she will see. If she was a C, she will escape. So Coaxilla escape. Okay. The next is flash.
Flash method is at 72 degrees centigrade for 20 seconds. You can flash 20 seconds. You need that. Flash looks like kidney. F. Kidney is 2. 72 is 2. 20 second is 2. Second is second 2. Why I'm telling this silly thing? Because you will make mistakes in the reading and they are really important to remember. Okay? The trick here is second. Number 2. The trick here is 69. You need to reach the 69. In tyndallization is a process of 3 days. How many days? 3 days at 100 degrees centigrade for 20 minutes. If any of the both stories don't hold up, ना होल्डर की स्टोरी ना फ्लैश की स्टोरी, जो स्टोरी चल रही है क्वेश्चंस के अंदर, that would be tyndallization. Yes, you can remember it, but I don't have still found the mnemonic for it. But only remember 3 days is tyndallization. T for 3. That will work. And it's a neat PYQ. If this is a neat PYQ, then that means the next question can be holder or flash also. Okay? That's how you know key, how you predict questions. Now we are making a flowchart for physical agents. Okay? Sterilization, physical methods. The first method is heat. Second method is filter. Third method is radiation. These are the methods. Three methods. Heat is the best method. Okay. What kind of material? Any material. In any material we can use the heat method. Okay. Except which material? किन में heat नहीं कर सकते? Except heat labile. Heat labile मतलब which material they get destroyed when put to heat and we can't use them or reuse them. If you want to reuse something, okay, and after a heat it gets destroyed, you हमारा पर्पस तो मेट नहीं होगा ना, तो जो हीट लेबाइल है वो नहीं हो सकते. सो हीट लेबाइल क्या क्या होते हैं? हीट लेबाइल कहाँ होता है? इफ इट इज a heat labile liquid or a heat labile gas, then we use filter method. If it's a heat labile solid material, then we use radiation. Okay, तो पता चलेगा किसमें क्या करते हैं. 1 second, give me just 1 second. Hello, I'm back. Okay, heat, filter and radiation. Is it clear? ऑडियो बंद है क्या? हीट, फिल्टर एंड रेडिएशन, कौन सा मटेरियल किसमें जाएगा? दिस वन इज क्लियर. ओके. हाउ द फिल्टर मेथड वर्क्स? वी सेपरेट द ऑर्गेनिज्म. Organisms are separated through a filter. Okay. How does radiation work? Radiation works by damaging the nucleic acid of organism and the organism will get killed.
what radiations do. Okay, so there are two methods of each. Heat can be used by the method of, it can be dry heat or it can be wet heat, or dry heat or moist method. Filtration can be used in depth in a vertical member. We can use membrane for a filter. रिमेम्बर द क्रोमेटोग्राफी स्ट्रक्चर, उसका डायग्राम होता था, हम ऊपर से स्ट्रक्चर डालते थे कोई एंटीजन एंटीबॉडी कुछ भी, और वो नीचे आता था डाउन द, दैट मींस, दैट इज व्हाट आई मीन बाय डेप्थ। लेकिन हम इसको यूज नहीं करते स्टरलाइजेशन वगैरह के लिए, ये हम डायग्नोस्टिक प्रोसेस में यूज कर लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी अदर थिंग। रेडिएशन कैन बी आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन डू नॉट डैमेज, so we don't use them, and we use ionizing radiations. Okay, आयनाइजिंग रेडिएशंस कौन कौन सी हो सकती हैं? एक होती है एक्सरे, और एक होती है गामा रे। एक्सरेज तो हम डायग्नोस्टिक्स के लिए यूज करते हैं, तो ये यहाँ नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे कौन सी यूज होती है? गामा रेस। गामा रेस क्यों यूज होती हैं? बिकॉज दे हैव गॉट गुड पेनेट्रेशन, इट कैन पेनेट्रेट the cells and damage the DNA properly. Okay, of if the any organism is present. For in membrane method, what we use? We use membrane filters. How we use it? What are these? We will discuss it. In dry air method, in dry air or in moist air method, because we are using hot air. In dry method, we use hot air because air is dry. Hot air method. Okay. Hot air method works on the principle of we use the temperature of 160 degrees for 2 hours. Okay. And wet method includes our favorite, that is autoclave. It is a wet heat method or moist heat method. The temperature is for 121 degrees centigrade for 15 minutes. For the pressure is 15 psi. ठीक है, टेम्परेचर के साथ इसमें प्रेशर भी रखना है। यार कैसे याद रखना? ऑटो हैज 3 व्हील्स, है ना? All the measurements can be divided by 3 in autoclave. 1 to 1 can be divided, 15 can be divided, and 15 psi can be divided. Okay. Hot air. Okay. Hot 0 to 0, T to 2. Okay. तो हमें ये याद हो जाएंगे। हॉट एयर 162 आवर्स। आवर कैसे याद रखना है? होते तो ये मिनट है, देख रहे हो, इसमें मिनट है, इसमें कितना? आवर। आवर हम एच से याद रखेंगे। अगर रिमेम्बर दिस, दीज आर द थिंग जिसके पैसे लेता हूं बाकी तो सब ठीक है, बाकी तो कहीं से पढ़ लो, यूट्यूब पे भी है सब, ये नहीं है। ओके, हाउ टू रिमेम्बर थिंग्स। ओके, 4 2 + 2 याद करेंगे। 4 थिंग्स इन हॉट एयर। 1 इज ग्लास एंड शार्प। Glass and sharp, why? Glass is from the blue bag, sharp is from the white bag. So white means अंदर color नहीं किया। The other two products are anything oily or anything powdery. I don't think ये फंगस के टर्म्स आ गए, जब हमने फंगस में पढ़ा था कि एसडीए में ऑयल डालो, पाउडरी ग्रोथ कराओ, सिंपल। तो वहां से ऐसे याद रखना, कोई भी चीज ऑयली हो, पाउडरी हो, उसको तुम ड्राई कर दोगे, क्योंकि फंगस कहाँ होता है? मॉइस्ट में, है ना? ग्रोथ तो वहां पे होता है जहां पे थोड़ा वेट हो और हॉट हो, ऐसी जगह पे फंगल ग्रोथ होती है। दैट इज वाई जेनाइटल
एरियाज एक्सपोज होते हैं। अगर तुम उसको ड्राई कर दो तो फंगल ग्रोथ नहीं होगी। इट्स ए कंसेप्ट, आई नो दैट, बट टू रिमेंबर व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल, एनी मटेरियल विच इज ऑयली, एनी मटेरियल विच इज पाउडरी, you can use dry hot air for sterilization. Okay, let's do the examples here. What kind of examples come into mind? I am saying liquid paraffin wax. Paraffin, you have heard? They will not write paraffin wax completely. They will say paraffin. It's a oily wax which is used as in sampling or embalming. Next is powder of gloves. जो gloves का जो powder है, it can be sterilized with this. हमें क्या लगता है, ग्लव्स के ऊपर पाउडर हमेशा से होता है क्या? जो होता है, मे बी ग्लव्स अलग जगह से बन के आ रहे होंगे, स्टरलाइज हो रहे होंगे, पाउडर अलग जगह से आ रहा होगा, बाद में फैक्ट्री में एक बंदा बैठा होगा जो पाउडर भर रहा होगा, उसमें निकाल रहा होगा, झाड़ रहा होगा, आगे भेज रहा होगा। दिस दिस इज समथिंग विच मे बी हैपनिंग देयर। ओके, मेरी वीडियो बंद थी, आई डिडंट न्यू। तो द नेक्स्ट इज निडल। निडल, व्हाई निडल? बिकॉज इट इज ए शार्प। तो दो बीएमडब्ल्यू के तो यहाँ आ गए, लास्ट वाले कहाँ आ गए? फर्स्ट में हॉट एयर। अब चार ही हमें कल्चर ऑटोक्लेव में देखने हैं। ऑटोक्लेव में देखेंगे तो कैसे देखेंगे? 2+2, दैट इज अवर रूल। द फर्स्ट इज कल्चर मीडिया, विच कम्स फ्रॉम द येलो बैग। करना तो इसको क्या चाहिए वैसे, इंसिनरेट, लेकिन कल्चर मीडिया महंगे आते हैं। हम ऑटोक्लेव यूज करके उसको स्टेरलाइज करने की कोशिश करते हैं। एक्सेप्ट, क्या सारे कल्चर मीडिया? नो। कौन कौन से नहीं करेंगे? एग नहीं करेंगे, सीरम नहीं करेंगे। क्योंकि अगर तुम एग को करोगे या सीरम को करोगे, उनमें जो प्रोटीन्स हैं वो कोएगुलेट हो जाएंगे और वो वैसे ही स्ट्रक्चरल डैमेज कर देंगे। तो एग और सीरम कहाँ जाएंगे यार, इनका क्या करें हम? तो कहते हैं ये जो दो बाकी बना है मेम्ब्रेन फिल्टर, इसमें सीरम ले आओ। सीरम वाली सारी चीजें, क्यों सीरम यहाँ क्यों ला रहे हैं, एग क्यों नहीं ला रहे? क्योंकि यार सीरम है, सीरम लिक्विड है, और मेम्ब्रेन में कौन से जाएंगे? जो लिक्विड या गैस वाले हैं, यही है ना, लिक्विड जाएगा। तो इसलिए सीरम कौन सा, सीरम लिक्विड है, तो इसलिए यहाँ जा रहा है। क्यों यहाँ जा रहा है? क्योंकि यहाँ नहीं जा सकता, तो नेक्स्ट वाले कॉलम में शिफ्ट हो गया। ओके, अगर कल्चर मीडिया नहीं है एग और सीरम के, सीरम तो हो गया, एग के लिए क्या करेंगे? एग के लिए करेंगे या तो इंस्पिरेशन, बेटर देन टेंडलाइजेशन। These are the two processes which can be done for something which have egg in it. That is inspiration better than tendrilization. क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि कैसे ये फिर ये एग में काम कर लेते हैं, बिकॉज दे यूज लो टेम्परेचर। वो इतना हाई टेम्परेचर नहीं लेते, लो टेम्परेचर लेते हैं। जैसे टेंडलाइजेशन वगैरह थोड़े लो टेम्परेचर के, पैस्चराइजेशन लो टेम्परेचर के। कौन है एग वाले कल्चर मीडिया? वो भी तो पता है किस में करने हैं। द आंसर इज लोएफ्लर सीरम, स्लोप सीरम और एलजे मीडिया। ये दोनों मीडियाज के नाम सुने? एक कोराइनी बैक्टीरियम का है और एक टीबी में होता है। एलएसएस फॉर कोराइने, दिस इज फॉर टीबी, उनका कल्चर मीडिया। ओके, द नेक्स्ट टू, यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं ये थोड़ा इधर लेता हूँ। द नेक्स्ट टू वुड बी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड सूचर्स। सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यस सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सारे सूचर, हाँ सारे सूचर। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या हो गया? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स नहीं जो शार्प है, सारे सूचर में वो वाले सूचर नहीं जो कैटगट है।
बिकॉज कैटगट भी हैंडल नहीं करेगा, और शार्प हम कहाँ भेज चुके हैं पहले ही, पिछले ग्रुप में। समझा? तो कैटगट कहाँ जाएगा? कैटगट जाएगा, देखो, कैटगट सॉलिड है कि लिक्विड है? सूचर है, सॉलिड। तो क्या मेम्ब्रेन में जाएगा कि हेट लेबाइल रेडिएशन वाले में जाएगा? इधर जाएगा। तो यस, कैटगट सूचर्स आर स्टरलाइज्ड बाय गामा रेडिएशन। आई होप दिस मेक सेंस। ओके, चलो, थर्ड भी हो गया। थर्ड कह रहा हूँ मैं, सेकंड ही बना। ये देखो, दो सीन बताए थे। वन इज कल्चर मीडिया, द अदर इज दिस वन, ऑल सर्जिकल एंड ऑल सूचर्स। तो दो चीजें होगी। द नेक्स्ट टू आर प्लास्टिक एंड रबर। दैट मीन्स कौन सी कलर आ गई? लास्ट टू क्या है? रेड। यू सी, फर्स्ट टू ऑफ ड्राई हेयर वर ब्लू एंड व्हाइट, लास्ट ऑफ द हॉट एयर, सॉरी, autoclave इज रेड कॉलम। और येलो का एक आ गया कल्चर मीडिया यहाँ पे। सिर्फ कल्चर मीडिया है ना, क्योंकि येलो का जो फेट था वो क्या था? इंसिनरेशन। तो उसको क्या तुम स्टरलाइज करके तुम करना चाह रहे हो, लेकिन कर रहे हो तो ठीक है। इंसिनरेशन अपने आप में ही एक स्टरलाइजेशन प्रोसेस है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इंस्टिलेशन अपने आप में एक फिजिकल स्टरलाइजेशन प्रोसेस है कि तुम डिस्ट्रॉय कर रहे हो वाया हीट। ये भी एक हीट का मेथड हो गया ना। तो सारे कवर हो गए। एग्जाम्पल्स देखें यहाँ पे क्या आएंगे, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इफ आई से एनी ग्लव्स, इफ आई से एनी सिरिंज, जो भी रेड के कॉलम के एग्जाम्पल है, क्या बोलूं मैं यहाँ पे? क्या नहीं आएगा? सीरम, कल्चर मीडिया, ना, ये नहीं आएगा। क्यों? ये नहीं आ सकता, सिरम वाले कल्चर मीडिया नहीं अलाउड। प्लेन कल्चर मीडिया आ सकते हैं, यस, कोई भी कल्चर मीडिया बाकी आ सकता है। अब आता है ये जो ऑल सर्जिकल एंड ऑल शार्प, जो मैंने लिख दिया है, ये मैंने लिख दिया ऑटोक्लेव के अंदर। क्या ये बात सच है कि जो ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है और सर्जिकल सूचर है, मैंने ऊपर लिखा सबसे बेस्ट जो है वो हीट वाले मेथड होते हैं। आई एग्री, सबसे बेस्ट जो हीट मेथड होते हैं। आगे जाके मैं बताऊंगा कि जो प्लास्टिक और रबर है ना, उसको तुम हीट ही दे रहे हो, लेकिन मॉइस्ट हीट दे रहे हो, ड्राई हीट नहीं दे रहे। ऐसे फ्लेम के ऊपर नहीं रख दे रहे, तुम उसको स्टीम में रख रहे हो। ऑटोक्लेव स्टीमर या प्रेशर कुकर ही होता है ऑटोक्लेव, और कुछ नहीं होता ज्यादा, बस साइंटिफिक प्रेशर कुकर। और और कौन सा मेथड तुम यूज कर सकते हो इनके लिए? तुम, क्योंकि सॉलिड भी हैं, और मे भी शायद ये थोड़े हीट सेंसिटिव अगर हो जाए सॉलिड, कुछ प्लास्टिक्स होते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं। तो सेकंड जो तुम यूज कर सकते हो वो क्या कर सकते हो? इंफ्रारेड रेडिएशन, सॉरी, आयनाइजिंग रेडिएशन यूज कर सकते हो। लेकिन आयनाइजिंग रेडिएशन उतनी प्रेजेंट होती नहीं है। अब एक कैटगट सूचर है, एक याद रख लो, कोई भी मटेरियल जो कॉटन का है, उसको तुम, उसको बार बार कॉटन डिस्ट्रॉय थोड़ी करोगे, धो लोगे यार, रेडिएशन से हटा लो। और एक यहाँ पे आ जाता है मास्क। दो येलो वाले लास्ट में मैंने ऐड कर दिए दोनों के, ऐसे अकेले अकेले घूम रहे थे एक एक एग्जांपल लेके। तो दिस इज हाउ द फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन आर यूज्ड। इनमें से बेटर मेथड कौन सा है? हमेशा हीट। ऑल मेथड्स यूज करेंगे, अब मैं उनको हाईलाइट करता हूँ। हॉट एयर, ये कलर ठीक नहीं है, 1 सेकेंड। हॉट एयर, ऑटोक्लेव, मेम्ब्रेन फिल्टर, और
gamma rays. These are the four methods. IR is ionizing radiations. Ionizing radiation is heat labile solid radiation methods.